Hello everyone, welcome back to my channel Easy English Learning. In today's English class, we will be doing our next chapter of literature, that is The Vanishing Lunchboxes. The Vanishing Lunchboxes, it is adapted from the story The Tiffin Thief by Vatsla Kaul. Let's begin the story. Before starting the story, look at these pictures. Which food looks more appealing and appetizing to you? Here are three pictures of different foods. You have to see, look at these pictures, and you have to see which is more appealing, which is more catchy and appetizing, creating appetite in you. भूख लग रही है जिससे देखकर आपको. Different people have different choices when it comes to food. Does your friend like the same food items which you do? Talk about your food choices with your friend. Now here these food items are given and we all know that सबकी food choices different होती हैं. Now you just see that आपकी food choices, food preferences आपके friend के साथ match करती है. Just check it out and talk about your food choices with your friend. Let's begin the story, The Vanishing Lunchboxes. I'll be explaining in English as well as in Hindi. So listen carefully. Mother had to go to Rampur for a month to tend to her sick sister. That left father in charge of the house and our new cook in charge of the kitchen. Now, the narrator, the author, is telling us that his mother had to go to Rampur. उसकी माँ को रामपुर जाना पड़ रहा है फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए, टू टेंड टू हर सिक सिस्टर. टेंड मीन्स टू पे अटेंशन, ध्यान देना. अपनी बीमार बहन के पास उसको ध्यान देने के लिए उसकी मदर को जाना पड़ रहा है, ऑथर की मदर को, जिसकी वजह से फादर जो है इन चार्ज ऑफ द हाउस. नाउ फादर विल बी लुकिंग आफ्टर द हाउस एंड आ न्यू कुक इन चार्ज ऑफ द किचन. और जो हमारा नया कुक है, हमारा नया रसोइया है, he will be the in charge of the kitchen. Things were fine until father decided to interfere with the cook's work. सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था. Everything was going fine until father, जब पिताजी ने डिसाइड किया कि वो इंटरफेयर करेंगे, बीच में आएंगे कुक्स के वर्क के, कि whatever the cook, जो भी कुक जो है काम कर रहा था उसके काम में वो बीच में आएंगे. They argued about everything from the cost of capsicums to how many brown spots a decent chapati should have. Now they were arguing. हर चीज़ पर बहस होती थी. Argue means बहस करना. About everything. They used to argue about everything from the cost of capsicums, कि शिमला मिर्च की, capsicum means शिमला मिर्च, शिमला मिर्च की कोस्ट क्या होनी चाहिए, और हाउ मेनी ब्राउन स्पॉट्स अ डिसेंट चपाती शुड हैव, कि एक डिसेंट, एक नॉर्मल चपाती में, एक नॉर्मल रोटी में कितनी ब्राउन डॉट्स, भूरी स्पॉट्स जो हैं होने चाहिए, इट शुड हैव. Soon the cook became tired of these arguments and decamped. बहुत जल्दी जो था वो कुक जो था, उनका रसोइया था, वो थक गया था ये सब बातें सुन के, ये सब आर्ग्यूमेंट्स सुन के. एंड डिकैम्प्ड. डिकैम्प मीन्स सडनली उसने चुपचाप जो है वो जगह छोड़ दी और उनका कुक जो है वो चला गया. Now I was left at the mercy of my father, who decided this was the one opportunity he had to make me sample his cooking. अब जो है मैं सिर्फ अपने पिताजी, मर्सी मीन्स कंपैशन. नाउ अब मैं अपने पिता की दया पर ही निर्भर था कि कैसे जो है वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो जो है अपनी कुकिंग, अपना जो खाना बनाने का तरीका है उसका सैम्पल मुझे दिखाएंगे. ही विल शो मी हाउ ही रियली कुक्स. ही गॉट अ चांस. Father took pride in his culinary work, however, he could not cook. Now, culinary means of or relating to kitchen. Kitchen से related कुछ भी है, that is culinary work. Now, father, he was taking pride. He was very happy. वो इसमें बहुत गर्व महसूस कर रहे थे. Now he will be doing kitchen work, but he could not cook. लेकिन वो खाना नहीं बना सकते थे.
Meal times became a nightmare for me as I gulped down charred chapatis with runny dal. अब जो नरेटर था, ऑथर था, उसके लिए खाना खाने का वक्त जो है एक नाइटमेयर मीन्स मिजरी. इट वॉज लाइक अ मिजरी फॉर हिम, फॉर हॉरर फॉर हिम. बहुत ज़्यादा डरावना टाइम होता था उसके लिए. फॉर मी एज आई गल्प डाउन चार्ड चपातीज विद रनी दाल. चार्ड चपाती मीन्स बिल्कुल जली हुई. चार्ड मीन्स टू बिकम बर्न्ड पार्शली सो एज टू ब्लैकन द सरफेस, कि आधी जली हुई रोटी उसे खानी पड़ती थी. गल्प मीन्स टू स्वेलो हरिडली, मीन्स जल्दी जल्दी चबाना. दैट इज गल्प्ड. And he had to eat that charred chapatis with runny dal. Runny means extra thin liquid. बहुत पतली means पानी पानी तैर रहा है. He couldn't see the dal in that. With amazing regularity, father transformed potatoes into stones, turned spinach into mush, and burned onions to charcoal. Whenever I complained about the dishes, I got long lectures on ungrateful children, devoted parents, and the importance of food. Now, father transformed. Amazing regularity, you see. अब जो है बिकॉज मदर जो है 1 महीने के लिए गई हुई थी, अब फादर ही कुक भी उनका चला गया था. अब फादर ही जो है सब खाना बना रहे थे. तो विद अमेजिंग रेगुलरिटी ही वॉज वेरी मच इन रेगुलरली ही वॉज कुकिंग. रेगुलरली वो खाना बना रहे थे लगातार. तो वो क्या करते थे, फादर ट्रांसफॉर्म पोटैटोज इनटू स्टोन्स, कि आलू इतने सॉफ्ट होते हैं जो, उसको भी वो इतना ज़्यादा स्टोन, पत्थर की तरह सॉफ्ट जो आलू होते हैं उसको भी हार्ड बना देते थे. Turned spinach into mush. Mush means thick soft mass, कि जो पालक है उसको बहुत ज़्यादा थिक बना देते हैं. उतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती थी वो, पता नहीं क्या बना देते थे वो. एंड बर्न्ड अनियंस टू चारकोल. और अनियंस प्याज को तो वो चारकोल की तरह जो है कोयले की तरह काला कर देते थे. और जब भी मैं कंप्लेन करता था, वेन एवर आई यूज़ टू कंप्लेन अबाउट द डिशेस, मुझे पूरे लंबे लंबे लेक्चर्स सुनाए जाते थे कि कैसे जो है बच्चे अनग्रेटफुल हैं. उन्हें बिल्कुल भी अपने जो माँ बाप उनके लिए कर रहे हैं उसके लिए वो ग्रेटफुल नहीं हैं. डिवोटेड, कि पेरेंट्स कितने डिवोटेड होते हैं. और इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड, कि फूड कितना इम्पॉर्टेंट होता है, खाना जैसा भी हो खा लेना चाहिए. ऐसे जो है लेक्चर्स नरेटर के फादर उसे सुनाते थे. वो बहुत परेशान था बिकॉज उसे ऐसा खाना हर रोज खाना पड़ता था. नाउ सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. माई स्टमक no longer growled from hunger. It growled from food. My greatest cause of misery was my lunchbox. Every day on the way to school, I would open it and empty the contents into the nearest garbage bin. After all, I could not risk the contents reaching chemically and exploding in school. Now, the narrator is saying growled means to complain angrily. Now, the narrator is saying that कि उसका जो स्टमक था, पेट था, अब वो भूख से, हंगर से गुस्सा नहीं होता था. Now it growled from food. अब वो खाना देखकर गुस्सा हो जाता था. Growled, I told you, it's to complain angrily. खाना देखकर उसे गुस्सा आता था. और उसकी ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ मिजरी क्या था, उसका लंच बॉक्स. मिजरी मीन्स अ स्टेट ऑफ ग्रेट सैडनेस. बहुत ज़्यादा दुखी होने का उसका क्या रीज़न होता था, उसका लंच बॉक्स देखकर नरेटर जो है बहुत दुखी हो जाता था. एवरी डे ऑन द वे टू स्कूल, जब भी वो स्कूल जाता था वो अपना लंच बॉक्स रास्ते में खोलता था. एंड एम्प्टी द कंटेंट्स इनटू द नियरेस्ट गार्बेज बिन. और जो पास में ही कोई डस्टबिन है उसमें वो अपना सारा लंच बॉक्स खाली कर देता था. उसमें जो भी कंटेंट्स थे, जो भी उसमें खाने को होता था, वो सब उसमें फेंक देता था. ही यूज्ड टू थ्रो इनटू द डस्टबिन. After all, I could not risk the contents reacting chemically and exploding in school. Now, because narrator जो था, author जो था, वो नहीं चाहता था कि ये जो कंटेंट्स हैं, जो जला हुआ खाना है या हार्ड पोटैटोज़ हैं, रनी दाल है, ये सब जो है उसकी बॉडी में जाकर या स्कूल में जाकर केमिकली जो है रिएक्ट करें और एक्सप्लोड हो जाएं. ऐसा वो कुछ नहीं चाहता था. एक्सप्लोडिंग मीन्स टू बर्स्ट वायलेंटली, कि वो इतना ऐसा खाना देखकर जो है कुछ ख़राब हो जाए, कुछ वायलेंट हो जाए उसकी बॉडी में, ऐसा वो नहीं चाहता था. Now you see these 3 dots, as you see, because this is not the complete story, it is just adapted. ये जो है complete story नहीं है,
ये सिर्फ अडेप्ट की गई है. द मेन स्टोरी दैट इज़ द टिफिन थीफ बाय वत्सला कौल. तो इस स्टोरी में हमें वी विल गेट द आइडिया बट इट इज़ नॉट अ कंप्लीट स्टोरी. इन सम पोर्शन हेयर इज़ क्वाइट मिसिंग, सो वी विल बी रीडिंग अकॉर्डिंगली. हाँ, मेन जो थीम है स्टोरी की, वी विल गेट an idea from that, whatever the story is given to us. Now, Class 5B was in furore. Class monitor Jatin Kochar had called a meeting. Lunch boxes were vanishing regularly from students' bags. The funny thing was that they reappeared the next day filled with tasty tidbits. Now, what was happening in the school? Class 5B. This is the scene of class 5B. You can see in the picture as well. In a furore. Furore means in an uproar or commotion. कि बहुत ज़्यादा परेशान थी class 5B. That was in furore. Furore means to bother. कि बहुत ज़्यादा एक कुछ चीज़ थी जो उन्हें bother कर रही थी, जो उन्हें परेशानी में डाल रही थी. क्लास का मॉनिटर जतिन कोचर जो था उसने एक क्लास में मीटिंग बुलाई एंड दे वाज डिस्कसिंग ऑन द थिंग दैट कि लंच बॉक्सेस जो हैं वो एकदम से गायब हो रहे हैं. वैनिश मीन्स गायब होना. रेगुलरली गायब हो जाते हैं बच्चों के बैग से, स्टूडेंट्स के बैग से. एंड फनी थिंग ये थी, बहुत मजाक की बात ये थी कि अगले दिन वो रीअपियर हो जाते थे उन्हीं के बैग में और उसमें टेस्टी टिडबिट्स. टिडबिट्स मीन्स स्मॉल पीस ऑफ फूड, कि छोटा छोटा कुछ पीस ऑफ फूड जो है उसमें होता था और अगले दिन वो उसके साथ उसमें लंच बॉक्सेस उन्हें वापस मिल जाते थे. बट सडनली जो है वो वैनिश हो रहे थे, गायब हो रहे थे. व्हाई वाज दिस ऑल हैपनिंग? ये सब क्यों हो रहा था? जतिन बिगैन सीरियसली, दिस इज बैड यू नो. नाउ जतिन वाज सेइंग दैट ये बहुत बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है. वेरी बैड, द क्लास इकोड. अब क्लास जो है सब एक साथ बोले, इकोड जोर से बोले, यस इट्स वेरी बैड, बहुत बुरा है ये सब. We have a thief amongst us, Jatin continued. A thief, everyone sang out again. Now जतिन ने बोला कि हम सब के बीच में कोई एक है जो चोर है, जो thief है. And everyone continued, a thief, yes, हमारे बीच में एक चोर है. We have to solve this mystery. Does anyone have any idea how to go about it? Jatin asked the class. अब जतिन ने पूछा, हमारे पास एक मिस्ट्री सॉल्व करने को है, ये रहस्य है कि कौन है जो ऐसे, ये सब जो चोर कौन है, हमें इसे सॉल्व करना है. कि क्या किसी के पास आइडिया है कि हम कैसे इसको लें, कैसे इसको सॉल्व करें? जतिन ने क्लास से पूछा. Why don't we complain to the class teacher? said Shekhar Gulati. अब एक स्टूडेंट था, there was a student named Shekhar Gulati, that we should talk to our class in charge. कि हमें अपनी क्लास टीचर से बात करनी चाहिए, हमें उन्हें कंप्लेन करनी चाहिए. Everyone glared at him. Glared means to stare angrily, गुस्से से देखना. The students did not want any adult to intervene. They wanted to solve this case on their own. अब जो है बच्चों ने उसे बहुत गुस्से से देखा. किसे? शेखर गुलाटी को. बिकॉज बच्चे नहीं चाहते थे कि कोई एडल्ट, कोई बड़ा जो है उनकी इस बात में बीच में आए. इंटरवीन मीन्स बीच में आना. दे वॉन्टेड टू सॉल्व दिस केस ऑन देयर ओन. वो खुद ही ये केस सॉल्व करना चाहते थे. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट. हाउ कैन यू बी श्योर देयर इज ओनली वन थीफ? आस्क्ड स्वाति कोहली, द ब्रेन ऑफ द क्लास. Different people could be stealing the boxes on different days. Now, Swati, she was another student of the class. She gave her thought कि ऐसा कैसे कह सकते हो कि सिर्फ एक ही thief है, सिर्फ एक ही चोर है. The brain of the class means she might be very intelligent student of the class. बहुत intelligent student होगी क्लास की. That's why she is called the brain of the class. हो सकता है different, अलग अलग लोग अलग अलग दिन चुरा रहे हो लंच बॉक्सेस को. All eyes turned towards her and a crowd of voices asked her accusingly, You mean we are all thieves? अब सब बच्चे जो है सारी आंखें उसकी तरफ हो गई, सब उसे देखने लगे और सब जो है चिल्ला चिल्ला कर क्राउड में इकट्ठे एक साथ बोलने लगे. accusingly, उसको एक्यूज़ करते हुए, उस पर इल्ज़ाम लगाते हुए. एक्यूज़ मीन्स इल्ज़ाम लगाना, कि तुम्हारा क्या मतलब है, हम सब चोर हैं. You mean we are all thieves? Now Swati, Jatin said,
Why would we get our lunch and then steal someone else's? Or is this a new game of musical lunchboxes? बट अब इस पर जतिन ने बोला कि लिसन स्वाति, कि हम अपना लंच घर से लेकर आते हैं, हम किसी और का लंच क्यों चुराएंगे? क्या ये कोई गेम है म्यूजिकल लंच बॉक्सेस की? व्हाट यू थिंक? कोई गेम थोड़े चल रही है। Everyone laughed. Swati sulkily returned to her algebra. Sulkily means indicating sulk, to be silent. एकदम शांत हो जाना। सब उसकी इस बात पर हंसे, जतिन की बात पर हंसे, और स्वाति चुपचाप जो है वो साइलेंट हो गई और अपना वापस से अलजेब्रा सॉल्व करने लगी। What could the motive be? Wondered Anisha. अब अनीशा, अनदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, वो बहुत हैरानी से पूछती कि इसके पीछे मोटिव क्या हो सकता है, कि क्या उसका रीज़न है जिस वजह से लंच बॉक्सेस गायब हो रहे हैं। हंगर, आई सजेस्टेड टेंटेटिवली। मोर लाफ्टर फॉलोड माई सजेशन। अब जो है कौन बोला ये? आई मीन्स द नरेटर। नाउ द नरेटर ही वॉज लिसनिंग वेरी साइलेंटली। अभी हमें नहीं मालूम, वी डोंट नो हु इज़ द लंच बॉक्स थीफ, बट ही वॉज लिसनिंग साइलेंटली एंड वो धीरे से बोलता है हंगर, कि हो सकता है भूख, भूख की वजह से, हंगर की वजह से ये सब हो रहा हो। टेंटेटिवली मीन्स हेजिटेंटली, बिकॉज ही वॉज वो धीरे धीरे हिचक रहा था वो ये सब बोलते हुए। हेजिटेंट मीन्स हिचकना। बट स्टिल ही सेड, और उसकी इस बात पर सब लोग जो है बहुत ज़ोर से हंसने लगे। उसके इस सजेशन पर एवरीवन वॉज लाफिंग। I think it is a symptom of a more dangerous disease. The thief may steal other things, Jatin said somberly. अब जो है इस बात पर जतिन बोला, ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ है, ये तो बहुत बुरी बीमारी है, ये तो बहुत गलत बात है कि थीफ जो है, चोर, कुछ और भी चोरी कर सकता है, कि ही मे स्टील अदर थिंग्स एज वेल, कि अभी तो ही इज़ जस्ट टेकिंग लंच बॉक्सेस, टुमारो, कल से वो कुछ और भी चोरी कर सकता है। Jatin said somberly. Somberly means seriously. Now Jatin was very much serious. Do you think he could steal us? It is scary. This was the baby Barkha. Children are being kidnapped a lot these days, you know. अब जो है एक another student of the class, that is Barkha, what she said, कि तुम्हें क्या लगता है कि वो हमें भी चुरा सकता है? It is scary. ये तो बहुत डरावनी चीज़ है, बहुत डरने वाली बात है। Now this was baby Barkha. She was considered as baby as she said that ये children, बच्चों को जो है आजकल किडनैप कर लिया जाता है, पता है तुम्हें? बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, तो क्या पता वो जो टिफिन थीफ है वो हमें भी चुरा ले। Silence, said Jatin. What we need is a plan of action. We will start by taking turns to keep watch in the class whenever it is empty. That means missing time out in the field during the games period and missing out on break time when most of us go out of the class. इस पर जतिन बोला, प्लीज़ साइलेंस, सब चुप हो जाओ। नाउ जतिन इज गिविंग वन सॉल्यूशन, कि हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन। हम क्या कर सकते हैं? वी हैव टू मेक अ प्लान ऑफ एक्शन। हमें एक प्लान बनाना होगा दैट हम जो है टर्न बाय टर्न, जब भी हमारी क्लास खाली होती है, व्हेनेवर इट इज़ एम्प्टी, हम क्लास में रुकेंगे। वी विल स्टे इन द क्लास ओनली, टर्न बाय टर्न। आज मैं, कल तुम, उससे अगले दिन तुम। सो बाय टर्न वाइज वी विल स्टे इन द क्लास जब भी हमारी क्लास खाली होती है। दैट मीन्स मिसिंग टाइम आउट इन द फील्ड ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड, कि जब भी हमारा गेम्स पीरियड होगा, कोई एक स्टूडेंट जो है वो क्लास में ही रहेगा चेक करने के लिए कि कौन है जो ये सब काम कर रहा है। एंड मिसिंग आउट ऑन ब्रेक टाइम, और जब हमारा ब्रेक टाइम होता है, लंच टाइम होता है, जब हम मोस्ट ऑफ अस, जब हम सब जो है क्लास से बाहर चले जाते हैं, उस टाइम के दौरान विल सी समवन विल स्टे इन द क्लास, और वो जो है चेक रखेगा कि ये सब कौन कर रहा है। I squirmed, Jatin noticed it. Squirmed means displayed discomfort by a wriggling movement, कि suddenly जो है नरेटर की मूवमेंट हुई, उसने कुछ अपनी बॉडी में मूवमेंट की, और जतिन ने इस बात को नोटिस कर लिया। You will keep watch in class this week, he said, pointing to me. अब जतिन ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, नरेटर इज सेइंग दिस, कि इस हफ्ते जो है तुम क्लास में वॉच रखोगे, इस वीक तुम क्लास में रहोगे। वेन एवर वी आर गोइंग आउट ऑफ द क्लास, और क्लास जब पूरी खाली होगी, तुम क्लास में रहोगे, जतिन सेड टू द नरेटर।
I hesitated for a second before nodding my head. I have a suggestion. Let us conduct a back to back search to see if there is someone who doesn't bring lunch. That could point to a motive. अब नरेटर जो था थोड़ी देर के लिए वो हिचका कि हेजिटेट किया उसने फॉर अ सेकेंड, बट फिर उसने अपना सिर हिला दिया कि ठीक है, आई विल बी देयर इन द क्लास वेन एवर वी ऑल आर गोइंग आउट। नरेटर ने एक और सजेशन दिया कि मेरे पास एक सजेशन है, क्यों ना हम हर बैग की बैक टू बैक सर्च करें और देखें कि कौन जो है लंच लाया ही नहीं है। उससे हमारा जो है पॉइंट जो है मोटिव जो है हमें पता चल जाएगा कि कौन लंच नहीं लाया और वही ये सब कर रहा है। गुड आइडिया सेड द क्लास। क्लास ने बोला ये तो अच्छा आइडिया है, हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। The next morning we rifled through everyone's bags. All 35 were intact with lunch boxes. अब नेक्स्ट मॉर्निंग से क्या हुआ, सबके जो है बैग्स चेक किए गए, सर्च थॉरली। राइफल्स थ्रू मीन्स बहुत अच्छे से चेक किए गए हर एक के बैग, एंड एवरीवन 35 स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास, और सबके पास जो है लंच बॉक्सेस थे। I stayed in the class during games time. At lunch hour, Preeti's spicy potatoes and chapatis had been eaten up. अब जो है नरेटर की टर्न थी स्पीक। He had to stay in the class. तो he stayed there in the games time. गेम्स टाइम के दौरान वो क्लास में ही रुका रहा, और लंच टाइम पर now what happened? Preeti's spicy potatoes and chapatis had been eaten up. लंच टाइम में क्या हुआ था, प्रीति के जो स्पाइसी पोटैटो थे और चपातीस थी वो खाए जा चुके थे। You useless watchman, she shouted at me. If I didn't know that your mother is a great cook, I would have thought that you had stolen my lunch. I smiled evilly. अब जो है नरेटर यूजलेस नरेटर जो है वो क्लास में ही था, लेकिन प्रीति जो है उस पर चिल्लाती है कि यू यूजलेस वॉचमैन, शी शाउटेड एट मी, कि तुम जो है किसी काम के वॉचमैन नहीं हो। वो मुझ पर ज़ोर से चिल्लाई कि अगर मुझे पता नहीं होता कि तुम्हारी मदर जो है इतना अच्छा खाना बनाती है, मुझे लगता कि तुम ही ने मेरा लंच चुराया है। आई स्माइल्ड इविली। इविली मीन्स कॉजिंग डिस्कम्फर्ट और शोइंग इन्फीरियर, कि बहुत ज़्यादा डिसकम्फर्टेबल हो जाना। नरेटर जो है उस तरीके से हंसा। प्रीति जानती थी कि नरेटर की मदर बहुत अच्छी कुक है, तो वो तो खाना नहीं चुरा सकता। द चपातीज हैड बीन वार्म एंड द पोटैटोज सॉफ्ट एंड स्पाइसी। अब नेक्स्ट डे, अब ये जो है अभी वी डोंट नो हु इज़ द लंच बॉक्स थीफ। वी आर जस्ट रीडिंग टू फाइंड इट आउट कि कौन है ये। हालांकि यू कैन फील दैट हु इज़ द लंच बॉक्स थीफ, that you have to notice and that you have to see in your mind, because हम स्टोरी काफ़ी पढ़ चुके हैं, अब तक पता चल जाना चाहिए कि who is the thief. Now the narrator is saying that chapatis had been warm and the potatoes soft and spicy, कि चपातीस जो हैं बहुत ज़्यादा गरम गरम और पोटैटोज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पाइसी थे, मसालेदार थे। The next day, Preeti's lunchbox reappeared with a bar of chocolate in it. अब नेक्स्ट डे प्रीति का लंच बॉक्स जो है फिर से अपीयर हुआ, और उसमें क्या था, चॉकलेट, अ बार ऑफ चॉकलेट इन इट, और उसमें चॉकलेट की एक बार थी। शी प्रिटेंडेड टू फॉरगॉट हर लंच बॉक्स ऑन हर डेस्क एट ब्रेक टाइम, इन्वाइटिंग द काइंडली थीफ। अब जो है प्रीति जो है प्रिटेंड कर रही थी, वो ऐसा दिखावा कर रही थी कि उसका लंच बॉक्स जो है डेस्क पर ही छूट गया था ब्रेक टाइम में, और इन्वाइटिंग द काइंडली थीफ, कि जो थीफ जो है इतना काइंड है, उसने चॉकलेट लाया है उसके लिए, तो उसके वो क्या कर रही थी कि थीफ जो है इनवाइट कर रही थी ताकि वो उसमें कुछ डाले। दिस टाइम हाउएवर इट वॉज संजय शेखरीज लंच बॉक्स दैट वैनिश्ड। अब नेक्स्ट डे किसका लंच बॉक्स गायब हो गया, संजय शेखरी, अनदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास। द पराठास हैड बीन फिल्ड विद ग्रेटेड कॉलीफ्लावर, कि पर गोभी के पराठे की कद्दूकस की हुई ग्रेटेड गोभी के पराठे जो है बहुत ज़्यादा स्वाद थे, अच्छे से भरे हुए थे पराठे में। एंड द पिकल्स टैंगी मैंगोज, और खट्टे आम का अचार, वाओ इट वॉज सो यमी। ही गॉट टॉफीज टू कॉम्पनसेट फॉर हिज मिसिंग लंच। अब उसे कॉम्पनसेशन के रूप में अगले दिन क्या मिला, उसका लंच बॉक्स जो मिसिंग था, अगले दिन उसको अपने लंच बॉक्स में टॉफीज मिली। The third day, the mystery thief zeroed in on Vijanti's upma. The accompanying chutney was breathtaking.
and the gift of mint chocolates took away her breath. अब तीसरे दिन क्या हुआ? मिस्ट्री थीफ, अब जो मिस्ट्री थीफ था, जो चोर था, वी डोंट नो चोर कौन था. हालांकि आई थिंक दैट आपको पता चल गया होगा कि चोर कौन था, बट स्टिल वी आर फाइंडिंग इट आउट. ये चोर कौन था? जो मिस्ट्री थीफ था, ज़ीरोड इन ऑन, टारगेटेड मीन्स उसका टारगेट क्या था आज? विजंती का उपमा. उपमा इज़ अ वेरी टेस्टी डिश. उपमा उसका जो है टारगेट था आज का. और उसके साथ जो अकम्पनिंग चटनी मीन्स उसके साथ जो चटनी थी वो ब्रेथ टेकिंग मीन्स इतनी टेस्टी थी कि बस भूल जाओ आप सब कुछ. एंड द गिफ्ट ऑफ मिंट चॉकलेट्स टुक अवे हर ब्रेथ. और जो अगले दिन विजंती को मिंट चॉकलेट्स मिली, उससे वो बहुत खुश थी. टुक हर ब्रेथ अवे. The fourth day, Anjali Alexander's cheese sandwiches disappeared. Now, अब अगले दिन क्या हुआ? अंजलि अलेक्जेंडर, अनदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, उसके चीज़ सैंडविचेस गायब हो गए. एंड शी लव द फ्रूट बार द थीफ पुट इन हर बॉक्स. बट अगले दिन जो थीफ चोर ने उसके टिफ़िन बॉक्स में फ्रूट बार रखा, उसे वो बहुत पसंद आया. From the fifth day, the theft stopped. As fast as he had appeared, the lunch thief disappeared. You see, mother had come back. Now, on the fifth day से सारी जो चोरियाँ थी लंच बॉक्सेस की, वो सब रुक गई. They were stopped. As जितनी जल्दी ये स्टार्ट हुई थी उतनी ही जल्दी जो है ये गायब भी हो गई. The lunch thief disappeared. लंच थीफ जैसे गायब ही हो गया. लंच बॉक्स चुराने वाला चोर शायद गायब हो गया था. He disappeared. You see, mother had come back. आप सोच रहे हैं कि बिकॉज मदर आ गई थी, नरेटर की मदर वापस आ गई थी. नाउ यू सी ऑल दीज थिंग्स दैट वाई दीज ऑल थिंग्स वर हैपनिंग. सडनली लंच बॉक्सेस जो हैं गायब होने लगे. सडनली उसमें फिर बिकॉज लंच बॉक्स थी को बुरा भी लगता था, तो इसमें वो कॉम्पनसेशन के रूप में अगले दिन कुछ डाल देता था. समटाइम्स चॉकलेट्स, समटाइम्स टॉफ़ीज़, समटाइम्स मिंट चॉकलेट्स, तो समटाइम्स जो है फ्रूट बार. बट अभी जो है सारी चोरी बंद हो गई थी बिकॉज मदर आ गई थी. सो हु वॉज द थीफ? द नरेटर हिमसेल्फ. क्योंकि वो अपने फादर का बनाया हुआ खाना नहीं खा सकता था, दैट्स वाई ही वॉज स्टीलिंग लंच बॉक्सेस ऑफ other students. Now you see there are again 3 dots. So this was till here we know that who is the thief now. Mother saw red when she learned about our cook's betrayal. She turned yellow on the dal that father had cooked. Betrayal means disloyalty. कि मदर जो है गुस्से से एकदम लाल हो गई थी जब उन्हें पता चला कि कैसे कुक जो है हमारा रसोईया बीच में ही छोड़कर चला गया था. एंड शी टर्न्ड येलो. और जब उन्होंने फादर के बनाई हुई दाल को टेस्ट किया, वो एकदम से पीली पड़ गई. She did not scream or shout at him, but calmly convinced him to take a break from kitchen duties and focus hard on his office work. अब मदर ने जो है दाल खाकर बिल्कुल भी वो गुस्सा नहीं हुई. She didn't shout. वो चिल्लाई नहीं, वो गुस्सा नहीं हुई, बट उन्होंने आराम से बिल्कुल फादर को कन्विंस किया कि नाउ इट्स टाइम यू शुड टेक ब्रेक फ्रॉम किचन ड्यूटीज़. कि अब आपको जो है किचन ड्यूटीज़ से जो है ब्रेक ले लेना चाहिए. नाउ यू डोंट नीड टू डू इट एनी मोर, एंड आपको सिर्फ अपने ऑफिस के काम पर ध्यान देना चाहिए. शी वॉज एक्स्ट्रा अफेक्शनेट टुवर्ड्स मी एंड कुकड ऑल माई फेवरेट डिशेस. अब मदर जो थी वो एक्स्ट्रा अफेक्शनेट थी टुवर्ड्स द ऑथर, और अब उसकी सारी फेवरेट डिशेस जो है नरेटर को अब खाने को मिलती थी. Once again, food began to resemble food. My lunchbox no longer made me go into a nervous fit. अब जो है नरेटर बता रहा है, एक बार फिर से मेरा खाना जो है वो खाने जैसा लगने लगा था. रिसेंबल मीन्स टू लुक. अब वो खाने जैसा लगने लगा था. My lunchbox no longer made me go into a nervous fit. अब मेरा लंच बॉक्स जो है मुझे एकदम से नर्वस नहीं कर देता था. उसे देखकर मैं एकदम से नर्वस फिट मीन्स बहुत ज़्यादा मतलब अजीब नहीं हो जाता था, आउटब्रेक नहीं हो जाता था. नाउ इट वॉज फाइन टू लुक एट माई टिफिन. नाउ अगेन देयर आर 3 dots. So next part of the story that is coming. Time has flown by. I am now a freelance artist.
Freelance means a person who does pieces of work for different organizations rather than working full time for one organization. Freelance वो person होता है जो घर पर ही they can do and they do kind of assignments they are given. उनको assignments दे दिए जाते हैं different organizations जो हैं, और वो उसको complete करके वो उनको सबमिट करते रहते हैं. मीन्स नॉट वर्किंग फॉर एनी पर्टिकुलर वन, दे आर वर्किंग फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. अब जो है टाइम बिल्कुल फ्लो हो गया था, बिल्कुल टाइम आगे बढ़ गया था. अब नरेटर जो है वो फ्रीलांस आर्टिस्ट बन गया था. माई वाइफ इज़ इन कोचीन ऑन अ बिजनेस ट्रिप. आई जस्ट पैक्ड माई 10-year-old सन्स लंच बॉक्स. अब नरेटर जो है बता रहा है कि मेरी वाइफ जो है वो कोचीन गई हुई है, शी इज़ ऑन अ बिजनेस ट्रिप. अभी अभी मैंने अपने 10 साल के बेटे का लंच बॉक्स जो है पैक किया. डू नॉट स्मर्क. स्मर्क मीन्स हंसना, हल्की सी स्माइल देना कि आप हंसिए मत. डू नॉट स्मर्क. अनलाइक माई फादर आई लर्न हाउ टू कुक. कि मेरे फादर की तरह नहीं है, बल्कि मैंने जो है कुकिंग करना सीख लिया है. His box consists of a vegetable burger sprinkled with sesame seeds and homemade potato chips, crisp as the winter sun. Now the narrator is saying क्या उसने अपने बेटे को पैक करके दिया लंच बॉक्स में, कि इट कंसिस्ट ऑफ अ वेजिटेबल बर्गर. उसमें वेजिटेबल बर्गर है, उस पर मैंने सीसम सीड्स को स्प्रिंकल किया है, छिड़का है. एंड उसमें और क्या है, होममेड पोटैटो चिप्स हैं, क्रिस्प जो कि विंटर सन की तरह एकदम क्रिस्प, एकदम करारे हैं. आई डोंट वॉन्ट माई सन टू बिकम अ लंच बॉक्स थीफ, यू सी. अब नरेटर क्या बोल रहा है, नाउ ही इज एडमिटिंग दैट ही वॉज द लंच बॉक्स थीफ. कि अब वो क्या कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी लंच बॉक्स थीफ बने, सो मैंने कुकिंग सीख ली है. दे मे से ही गॉट इट फ्रॉम हिज फादर, एंड हाउ राइट दे वुड बी. कि वो ऐसा बोलते कि ये अगर लंच बॉक्स थीफ बना है, इसके फादर से ही इसमें गुण आया है, और कितने सही होते वो अगर ऐसा बोलते तो. Now, this was the story. You see how the narrator, as a kid, he used to eat lunchbox of his classmates because the cooking of his father. So it was a beautiful story. And you can go through the video, and if you find any difficulty, you can message in the chat box. You can write in the comment section, and question answers and word meanings I'll share in the link below. You can see from there. Thank you so much for watching this video. If you liked it, please like and share with your friends, and for more videos like this, please subscribe to my channel. Thank you so much.